Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi Jha and I welcome you all to a brand new video. Well, आज का वीडियो काफी ज्यादा ही requested था and I was like, damn guys, hold up, wait a minute. I'll make a video. और मुझे टाइम लगा थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग करने में because I wanted this video to be good and I hope you guys like it. Now again, this video is for anyone who is coming into 11th grade and they have chosen science as their stream. Now for the math student, please wait for a while. I'll have my friend with me someday and then he'll give you those tips. But अभी physics chemistry वाला part तो universal है and it's mostly for my NEET aspirants, but even if anyone else is watching the video, you'll still learn something new from it. So yeah, watch it till the end. Let's go. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शुरू कैसे करते दिव्यांशी? तो देखो, यू नीड टू बी इनरोल्ड समवेयर और अभी तक तो आई थिंक यू आर ऑलरेडी, बट अभी भी नहीं भी हो तो ऐसे ही सोचो कि यू हैव टू हैव अ इंस्टीट्यूशन. जैसे कि मैं ऑनलाइन पढ़ी हूँ पूरा साल, so I was enrolled in a batch, so you also need a batch for yourself. Now again, this is completely upon you कि तुम्हें कहाँ जाना है, whether you want to do online or offline. If you want to see a detailed explanation कि online या offline में से क्या better है for yourself, then you can go and watch the video. The link will be माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता. The link will be in my description. And I'll tell you what I did. So I was in a non-attending school and currently for those who are asking me कि मैं dummy कर रही हूँ या attending कर रही हूँ, see if my school sends me a notice and tells me to attend regularly, I'll have to do that anyway. So yeah, I don't have any opinions on that part for now. But if you are doing, non-attending from your state board or CBSE board or anywhere, then you might be able to relate with this better. But even if you are a regular student, I have a solid routine for you because I always thought of myself to be a regular school attending वाला student. तो मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि मैं कैसे करूंगी. At the end of the day, strategy video is there to give you tips, share my experience with you. If you are preparing for NEET और कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, you need to have someone that you can look up to, and that cannot be just some दीदी या फिर कोई ऐसा. That needs to be a proper teacher, okay? Okay. You guys know कि मैं फिजिक्स वाला से ही पढ़ी हूँ अपना पूरा साल, and that's something that I am very proud कि मैंने ऐसा किया. I did not really, lose my faith into it. अगर मैं कर देती तो I think I would have been distracted और मेरी 11th भी बहुत बर्बाद हो जाती, but ऐसा नहीं हुआ. I had faith in each and every teacher that I had in my batch क्योंकि मुझे पता था कि वो जो जिस हिसाब से मुझे गाइड कर रहे हैं, they will tell you the syllabus, they will सॉल्व ऑल योर डाउट्स. तुम्हें ये सोचना होता है ना कि ये सिलेबस में है, नई एनसीईआरटी ले या ओल्ड एनसीईआरटी ले, सारे टीचर तुम्हें ये क्लियर आउट कर देते हैं. बट फॉर माई साइड आई टेल यू बाय द न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि जब आप टीचर से पढ़ते हो वो आपको बता देता है. अगर एक अच्छा टीचर है वो आपको बता देगा कि बेटा ये ओल्ड एनसीईआरटी का पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी से डिलीटेड है. आपका कुछ नहीं छूटने वाला. अगर तुम्हें मेरा अर्जुना नीट का प्रॉपर रिव्यू देखना है तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वो भी तुम जाके देख सकते हो. अब तुम्हें लग रहा होगा दिव्यांशी बड़ा सेल्फ प्रमोशन कर रही हो, लेकिन यार मैंने सारे वीडियोस डाले हुए हैं. अगर तुम्हें जेन्युइनली देखना है तो तुम जाके देखो. मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ कि जाओ अभी देखो. एंड गाइज, इस वीडियो को मुझे बिल्कुल भी प्रमोशनल नहीं साउंड कराना था बिकॉज आई वॉन्टेड इट टू बी ओपन टू एवरीबडी. बट आई नो यू गाइज ऑल्सो वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन कि मैंने अर्जुना नीट के साथ कैसे अपना पढ़ाई किया, लाइक हाउ माई इंटायर डे यूज टू लुक लाइक. तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूंगी. बट फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज टू हैव फेथ इन योर टीचर्स. मैंने पहले भी ये बोला है, इफ समवन टेल्स यू कि इस चैप्टर से बेटा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सच बोल रहे हैं. आपको अननेसेसरी नहीं पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है जो नीट में आता है, वो नहीं पढ़ना है जो टीचर को आता है. मतलब ठीक है, मैंने छाप दिया लाइन अपने टीचर से सुन के, बट ठीक है ना, समझ रहे हो. बता रही है वो कागज तूने चोरी किया ना. तूने चोरी किया ना. और अभी साले बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि दिव्यांशी हम क्या रेफरेंस बुक ट्राई करें. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि सबसे पहले तो तुम्हारा एनसीईआरटी बेस पूरा क्लियर होना चाहिए. एनसीईआरटी भगवान है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो हो रहा है. एनसीईआरटी लिटरली देवता. आई एम नॉट इवन लाइंग. तो एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट नहीं करना. जाओ एनसीईआरटी जाके ऑर्डर करो. फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की ऑर्डर होनी चाहिए. जो लोग बोलते हैं ना फिजिक्स का क्या जरूरत है, अरे यार एक बुक की तो ऑर्डर कर लो, कौन सा बहुत महंगा है. नाउ यू विल आस्क मी व्हाई. देखो, जब मेरे टेस्ट में आता था ना फिजिक्स में भी असर्शन रीजन, लिटरली वो एनसीईआरटी के लाइन से उठ के आता था और मेरे से वो नहीं बनता था. नाउ यू विल आस्क मी व्हाई.
क्योंकि वो लाइन जो होती है ना एनसीईआरटी की, वो बहुत हार्ड टू डिकोड होती है। बड़े बड़े लोग भी चकमा खा जाते हैं। मेरा बायो में, आई एम लिटरली टेलिंग यू दिस, कि मेरा जितने भी क्वेश्चन में नंबर आज तक कटे हैं, मान लो कि 360 का होता है और मेरे किसी दिन 340 प्लस आए, 50 प्लस आए, क्यों नंबर कट रहा है? बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड, बिकॉज ऑफ सीक्वेंस बेस्ड, बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट आर लिटरली डिराइव्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी नंबर 1। सेकेंड, योर मॉड्यूल्स, जो आपके कोचिंग या फिर आपके ट्यूशन जहां से भी आप परचेज करो, मॉड्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है। नाउ द थिंग इज, समटाइम्स द क्वेश्चंस इन मॉड्यूल्स आर नॉट दैट रेलेवेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अब वो कैसे समझ आएगा दिव्यांशी? पहले चैप्टर खत्म होने दो, फिर मॉड्यूल चालू करना। अब अगर टीचर आपको साथ ही साथ मॉड्यूल में होमवर्क दे रहे हैं, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। तब टीचर आपको बता भी देते, जैसे सुधांशु सर जब हमें केमिस्ट्री में देते तो वो बोल देते थे कि हो सकता है 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसा लगे तो उसे ड्रॉप कर देना, क्योंकि मॉड्यूल इज मेड फॉर बोथ 2 years। 11th के कॉन्सेप्ट तो रहते हैं, बट 11th प्लस कॉन्सेप्ट भी रहते हैं जिसमें 12th का कुछ ज्ञान रहता है। एज अ स्टूडेंट आपको अपने टीचर के लेक्चर नोट्स फॉलो करने हैं। अभी आप डीसी पांडे या फिर कोई बड़ा सा पब्लिकेशन ले लोगे तो आप नहीं कर पाओगे। मतलब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं लिटरली बोल रही हूँ, आपसे नहीं हो पाएगा। मगर क्यों? बिकॉज आपका पहला इंपॉर्टेंस जो है वो है क्लास के क्वेश्चंस, देन योर डीपीपीज दैट आर गिवन, एंड देन योर मॉड्यूल के क्वेश्चंस। फिर उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस शीट्स मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है कोचिंग में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपके नीट के PYQs भी खत्म हो जाएंगे और आप सब कुछ कर लोगे, विच इज एन अमेजिंग थिंग, देन यू कैन गो विद JEE मेंस PYQ और फिर ही तुम कहीं और क्वेश्चंस ढूंढने जाना। I will recommend you क्वेश्चन के सोर्सेज थ्रू आउट द अपकमिंग ईयर, बट अभी तुम्हारा मेन गोल यही होना चाहिए। अभी आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, आपको थ्योरी पे बहुत इंपॉर्टेंटली फोकस करना है, बिकॉज मेनी टॉपर्स फेल इन द थ्योरी वाले क्वेश्चंस एंड डू वेरी गुड इन द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि पूरा ध्यान न्यूमेरिकल पे रहता है, न्यूमेरिकल। अब आते हैं कि रेगुलर जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है वो कैसे पढ़ेंगे। लाइक अ रफ समरी बता दो, बस एक वीक मेरी बात मान के देखो। अब तुम बोलोगे यार दिव्यांशी ऐसा क्या है, सुबह उठ जाओ, लिटरली नाइट आउल हो फिर भी एक बार ट्राई करो सुबह उठने का, नहीं होता है फिर भी ट्राई करो, क्योंकि waking up early as a regular school going student can change your entire stuff। आप सुबह 2 घंटे पहले स्कूल से उठ जाओ और रेडी होने में ना ज्यादा टाइम मत दो, 1 सेकंड 5 मिनट में नहा के आ जाओ। ये एकदम गंदे तरीके से नहाओ, भद्दे तरीके से नहाओ, जल्दी आओ, ब्रश करो, ब्रश करते करते भी शॉर्ट नोट्स खोल लो, रिवाइज करो। मुझे पता है ये पागलपन है, आप हर टाइम अपना यूटिलाइज कर रहे हो और लोगों को लगेगा भाई इतना ही कर रहा है, इतना क्यों पढ़ रहा है, बट इट विल बी हेल्पफुल। एंड आप अर्ली उठे हो तो सुबह सुबह आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो इसीलिए आपको फॉर्मूला शीट्स बनाना एंड रिविजन शीट्स बनाना बहुत जरूरी है। जनरली आई मेक इट इन माई व्लॉग्स, तो आपको पता है कि मैं कैसे बनाती हूँ, लेकिन कभी अगर डिटेल में जाना हो तो बता देंगे। अभी आप इतना समझो कि फॉर्मूला शीट कैसे बनाते हैं। आपको जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको आप एक बॉक्स में लिखोगे। फर्स्ट टॉपिक नेम, सपोज मोलारिटी इज द टॉपिक, उसमें से जो भी फॉर्मूला है वो लिखा मैंने 1 2 3 करके। अगर इफ पॉसिबल राइट इन हिंदी कि इसका एप्लीकेशन कैसे क्वेश्चन में होता है, तो आप बस 1-2 पेज से ज्यादा नहीं लेना है। किसी चैप्टर में 3-4 पेज से ज्यादा होगा ही नहीं फॉर्मूला शीट आपका, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट शीट है उसका मैं बात कर रही हूँ, तो वो आपका इतना हेल्पफुल हो जाएगा ना आपको रिवीजन के टाइम। टेस्ट से पहले आप बस वो देखोगे और आपका टेस्ट शानदार जवाब लाजवाब जाएगा। ओके, So beautiful, so elegant, just looking like a wow. देन स्कूल में आपको क्या करना है ना, यू हैव टू हैव योर फॉर्मूला शीट्स विथ यू। ड्रग दो। जब भी आपको लगे टाइम मिल रहा है हम बस फॉर्मूला गो थ्रू करें। अब तुम बोलोगे यार दिव्यांशी हमें याद हो गया, झूठ मत बोलो, मजाक मत करो, इरिटेट मत करो, हमें याद हो गया फॉर्मूला एक ही बार में। नहीं हुआ याद, एक भी बार तुम भूल जाओगे, लिख के ले लो। तो इसीलिए रेपिटेशन इज द की। एंड अब आपको ये देखना है कि आप मान लो एक चैप्टर का फॉर्मूला शीट लिया, स्टार्टिंग में तो आपका बेसिक मैथ होगा, आप बेसिक मैथ के फॉर्मूला सब याद कर रहे हो। स्कूल में आप फ्री टाइम में फॉर्मूला शीट अपनी देख रहे हो, अपने रिवीजन पॉइंट्स देख रहे हो, थ्योरी पॉइंट्स देख रहे हो। अब आप क्या करो, एक वीक बाद संडे को सुबह सुबह उठ के या फिर जब भी उठते हो एक ब्लैंक पेपर खोलो, ठीक है, उस पे अब आपको जो भी याद है ना उस चैप्टर से वो लिखने का ट्राई करो। दिस इज कॉल्ड द ब्लर्टिंग मेथड। एंड अभी MR सर हमारे ये क्लास में भी ये करवाते हैं, एंड आई गेट शॉक्ड कि सर ने 7-8 बार पढ़ाया तब भी मैं ये पॉइंट मिस कर रही हूँ। वही चीज है, यू आर ऑलवेज डूइंग पैसिव लर्निंग, लेकिन एक्टिव जब आप करते हो ना तो आपको पता चलता है यार ये मैं भूल रही थी। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब स्कूल भी जाते हो तो जैसे बायो की क्लास है तो उसमें अटेंटिव रहो, बायो टीचर उधर पढ़ा रहे हैं, अपना एनसीईआरटी खोल के रीड करते रहो। अब तुमको पढ़ने के लिए तो टीचर नहीं ना टोक देगा,
वैसे अब कोई क्लास मैं उनके लिए बोलूँ जो मेरे जैसे सफर रहते हैं, जिनको लगता था यार क्या ही ये टीचर पढ़ा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं यही बोलूंगी अपना जो एक कॉपी, रफ कॉपी लेके जाओ और जो भी तुमको टीचर पढ़ा रहा है वो लिखते जाओ। बीइंग गुड ओरली इज समथिंग, बट इन एग्जाम्स यू हैव टू राइट। आपका स्कूल के लिए भी एग्जाम्स में आपको हेल्प होगा इससे, एंड आपके नीट के लिए भी आपको कॉन्सेप्ट्स रिकॉल होते रहेंगे, बिकॉज राइटिंग इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। फिर आप घर आके रेस्ट लो, देन यू हैव योर ऑनलाइन क्लासेस इफ यू आर अटेंडिंग। ऑनलाइन क्लासेस में एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जब बैठो तो यू हैव टू हैव अ स्टडी टेबल विथ यू। बेड पे नहीं होगा पढ़ाई, पहले क्लास कर भी लोगे तो दूसरे में सो जाओगे थक के। इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ अपने स्लीपर्स पहनो, शूज पहनो और अपने टेबल पे बैठो और एकदम जो मैम बोल रही है वो लिखते रहना है, जो बोल रहे हैं वो लिखते रहना है, चाहे रफ में लिखो, फेयर में लिखो, कैसे भी लिखो। जैसे ही आप आइडल बैठोगे ना, आपको दिमाग से कॉन्सेप्ट उड़ेंगे। फिर आपका क्लास खत्म हुआ, सॉल्व द डीपीपी देन एंड देयर, खत्म करो कहानी। कितना देरी लगेगा, 1 घंटा। कल के लिए डीपीपी नहीं छोड़ना है, दिस इज समथिंग यू हैव टू डू एंड यू हैव टू हैव 2 थिंग्स विथ यू, डेली एंड वीकली टारगेट। नाउ यू गाइज विल आस्क मी दिव्यांशी रिविजन का एक प्रॉपर टेक्निक बता दो। हर दिन रात को सोने जाने से पहले बस गो थ्रू करना है, कुछ याद करने नहीं बोल रही हूँ मैं। बेड पे हो, लेट के अपना कॉपी एक बार देखते रहो। और ये उन्हीं बच्चों के लिए टिप्स है जो जिन्हें पढ़ने का मन करता है। तो मैंने यहाँ पे लिख के लाया है, रिविजन प्लानर एक टाइप से बनाया मैंने। डेली रिवाइज वॉट एवर वॉज टॉट दैट डे एट नाइट। रीड एनसीईआरटी अगेन एट नाइट फॉर बायो। अब एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर नहीं, ओनली 1 टॉपिक। तो आप एक दिन में अगर पूरा चैप्टर पढ़ने लोगे तो आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा, बिकॉज लाइन समझ के पढ़ना होता है। बस ऐसे ही नहीं कि ओ पढ़े जा रहे हैं, नहीं, आपको समझ के पढ़ना है। इसलिए एक दिन में टारगेट लो 1-2 टॉपिक का ही, ओके, बिकॉज यू हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम पूरा कंप्लीट करने के लिए, उसका लिए टेंशन मत लेना। तुम्हें अभी लाइन्स याद करनी है एनसीईआरटी की, दिस शुड बी इन योर माइंड। वीकली संडे इज इक्वल टू रिविजन प्लस टेस्ट डे। हाँ, जनरली आपके संडेज को टेस्ट होंगे, तो उस दिन आप टेस्ट देने से पहले आपको मतलब रिवाइज कर लेना है रात को कि क्या क्या मेरा आने वाला है। और टेस्ट के बाद बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर गंदे भी आए तो आगे बढ़ो यार, टेस्ट के रिजल्ट्स बिल्कुल ही मैटर नहीं करते स्टार्टिंग के टाइम पे। A single piece of paper cannot decide my future. शॉर्ट प्रैक्टिस में तो मुझे आया था 290 में, आई थिंक 260 समथिंग, और 720 में 580। तो मैं डिमोटिवेट हो जाती, बट मैं नहीं हुई और आगे बढ़ते गए, तो फिर वो 660 तक भी पुश होता है आपका धीरे धीरे, ठीक है। तो इन योर माइंड यू शुड कीप वन थिंग, नेवर skip test no matter what, क्योंकि टेस्ट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू क्रैक नीट, नहीं तो कुछ काम का नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट, बस यही जरूरी है। एक फिजिक्स में रिवाइज करो, एक बायो में और एक केमिस्ट्री में रिवाइज हो जाना चाहिए। एक चैप्टर वीकली आपका ऐसे रिवाइज होते चलने जाना चाहिए। वीक जो भी आपका टॉपिक है उसके लिए मैं बोलूंगी, आपको सजेस्ट करूंगी एरर नोटबुक बनाओ और जो भी तुम्हारे क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से गलत हो रहा है उसको उसमें लिखते जाओ, बहुत काम आएगा। मेक अ मास्टरमाइंड शीट। मैं तुम्हें पहले भी फॉर्मूला शीट्स के बारे में बता रही थी, बट अभी बताती हूँ। इस मास्टरमाइंड शीट में सारे जो भी चैप्टर का तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारा फॉर्मूला होना चाहिए, तुम्हारा कीवर्ड्स होना चाहिए कि तुम डायमेंशन भूल जाते हो इसका, बार बार तुम पावर का डायमेंशन भूल रहे हो तो वहां पे लिखो। उसमें कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं उस चैप्टर के, जैसे मान लो कीवर्ड्स इन द सेंस सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर उस चैप्टर का कीवर्ड है, तो तुमको उसका आना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या क्या, उसके रूल्स क्या है। देन PYQ पैटर्न्स मैं भी अभी भी बनाती हूँ, हमेशा बनाना ही है आपको भी। एक फिर आपको दूसरे A4 साइज शीट पे आप क्या करो, लिखो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस चैप्टर, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस खुद से एनालाइज करो कि अच्छा बस डायमेंशनल एनालिसिस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको रैंडमली किसी का डायमेंशन देना पड़ेगा किसी और यूनिट में। जब मैंने आयुष सर से पढ़ा था तो वो पूरा टाइपोलॉजी भी आपको बताते हैं, तो दैट्स अमेजिंग थिंग जब टीचर खुद ही वो करा दे, बट आपको खुद से भी एक माइंड में रखना है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। समवन आस्क्ड मी कि दिव्यांशी ऑनलाइन क्लासेस में मोटिवेशन कैसे बनाए। यार देखो, मोटिवेशन ऑनलाइन क्लासेस में ना आपको तभी आएगा व्हेन यू आर वेरी फ्रेश। टेक 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एवरी डे, और किसी दिन आपको लगे कि मैं बहुत दिन से मेहनत कर रही हूँ, आज मुझे डे ऑफ लेना है, गो फॉर इट, बट मेक श्योर कि योर एवरी सेकेंड काउंट्स। और अगर तुम्हें मोटिवेशन सच्ची में चाहिए तो यार आंख बंद करो और सोचो कि तुम उस एग्जाम हॉल में बैठे हुए और तुम्हें सब कुछ आ रहा है क्योंकि तुमने इतना अच्छे से पढ़ा है, तो बस पढ़ते जाओ। एनसीईआरटी में बायो में डायग्राम्स खुद से प्रैक्टिस करते रहना है, इवन तो आपको लगे कि वो मैं बाद में भी कर लूंगी, बट नहीं, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ साथ ही साथ करते जाना है। हाउ टू टेक लेक्चर नोट्स, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि दिव्यांशी हाउ डू यू कीप अप विथ इट। तो देखो, सबसे पहले तो एक्टिव लिसनिंग आपको करना है।
हर पॉइंट लिखने से बेहतर है कि आप कीवर्ड्स और फ्लो चार्ट बनाओ। जैसे मान लो आपको सर ने थ्योरी वाले सेंटेंसेस दिखा दिए, तो वो आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, वो आपके मॉड्यूल्स में भी मिल जाएगा, हर जगह मिलेगा। यू नीड टू राइट व्हाट विल हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर योर टेस्ट। तो वहां पे आपको अपने हिसाब से सोचना है, कोई और नहीं आपका नोट देखने आएगा, आप ही को अपने लिए उसको बेस्ट बनाना है, समझ रहे हो। तो आपकी स्पीड अगर पहले इनिशियल डेज में स्लो है, तो आप क्या करो ना, आप पेजेस छोड़ दिया करो कि मैं क्लास के बाद बस ये थ्योरी लिख लूंगी। अरेंज्ड, हैंडराइटिंग अच्छी ना हो, ज्यादा कलर्स ना यूज करो, वो सब चलेगा, लेकिन हाँ अरेंज सब कुछ होना चाहिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए हो। अगर आई मिस समथिंग प्लीज टेल मी, आई मेक अ सेकंड वीडियो फॉर इट।